Hi everyone, this is Gautam this side from Synergy Education Classes, your mentor for accountancy and economics. So this video is not more academic content related, not about the subjects of accountancy and economics. This is more about the changes in the examination pattern in our curriculum relating to class 11 and class 12. The approach of formulation has been now towards about MCQ assessment. So everyone appearing for the class 12 boards will be knowing that now they'll be having two exams of assessment. One will be term one, term two. And iske baare mein, I think you guys have already sufficient videos and knowledge by now. What is it? So here my stance is MCQ a better examination approach? That's point number one. Point number two, what do I feel as to how should you prepare about your MCQ exams? So this video is basically covering about two aspects: my take on the MCQ exams, my personal opinion on the evaluation on the basis of MCQs, and my second video is as to how should you focus when you're preparing for an MCQ exam, keeping in mind that accountancy like of a subject or maths kind of a subject are the base to all the future courses. So are you deprived of any knowledge if you're basically relying on an MCQ approach? So these are the two aspects which I'll be basically taking on this video. So the first is MCQ a better assessment? So point number one, when I look into it, MCQ helps to evaluate a much more broader coverage of a syllabus, because now as a student you need to understand that the longer subjective answers will not be asked to you. You need to prepare in a smarter way. So the coverage of the syllabus can be exhaustively much more larger than a subjective paper. So your syllabus coverage will be definitely bigger in an MCQ based exam. That's point number one. Second point, when it comes to an MCQ exam, the answer is right there. You need to select one of it. So it's no more about the rote learning. It's no more about learning what's right there in the book. It's understanding in your own language and then solving more questions. So MCQs are an advantage. I personally believe this huge advantage. Third, it makes the paper checking problems very minimized, because now it's OMR based, which is more computer based. So it reduces human intervention into paper checking, and which is something which have been favored long back. When we look into the abroad exams, they all are MCQ based. They have certain elements of MCQ given to them so that the human checking part is minimized, because we know that when there is human intervention, there are bound to have errors. With OMR sheet coming into pictures and with MCQs coming with to the point answers, and more precisely OMR sheets coming into picture with computerized, I believe that the move towards checking mechanisms going to be much more simpler. Manpower involvement to manage 2 lakh answer scripts on the CBSE part is going to be easy. And a big relief to all those students who always used to complain that I cannot mug up all the points of business studies or I cannot mug up Indian economics. You don't have to do that anymore. You just need to know what's there in your textbook, read it multiple times and solve more MCQs and be crisp and clear with your MCQs. That's important. Now, my approach on the preparation of MCQs. So when I'm recording this video, this is on 12th of August. So what I see is roughly your exam's gonna be happening somewhere in November end or November mid. Let's take it November mid. So let's take it from here. You have exactly 3 months of preparation. Is that good enough? Yes, I personally believe that is good enough. So I believe that your first step should be that you have solved, you have understood, and you have read all the chapters, all the concepts by September 30th. That should be your mindset basically. कि September 30th तक हमने अपना पूरा syllabus एक बार पढ़ लिया है. We have the content and the idea about the syllabus, and we solved few MCQs from basic books that are available. Just to have an idea, okay, these are MCQs. I'm testing myself on MCQs. Then when it comes October, I believe every day, every subject, you need to solve 40 MCQs in 1.5 hours and not keeping 2 hours, so that you feel that pressure. So if you're solving 3 subjects in a day, that's 1.5 hours of self-study, and assuming you've studied it before, you have a summary copy handwritten which has all the points within you. Okay, these are the points जो मेरे को चाहिए पढ़ने से पहले. इस चैप्टर में ये पॉइंट्स है, मैंने एक बार क्विकली गो थ्रू किया एंड मैं जल्दी से क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊंगा. क्योंकि आप जितना ज्यादा एमसीक्यूज करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा.
एंड अक्टूबर 1 से लेके अगर हम अक्टूबर 30 तक का बात करें, 31 डेज होते हैं अक्टूबर में, तो 31 डेज में अगर हम 15 डेज में अगर हम अपने 3 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके कर रहे हैं और हर दिन मैं अगर 40 से 50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं, आई एंड अप सॉल्विंग 600 to 750 एमसीक्यूज. दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड अ ह्यूज कॉन्फिडेंस टू योरसेल्फ. प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हो जाता है कि क्या हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई करना चाहिए क्या, क्योंकि अब एमसीक्यू आ गया, क्या हमें बड़े सम सॉल्व करना चाहिए क्या फॉर एन अकाउंट्स और मैथ्स. तो यहाँ पे मेरा स्टैंस ये होगा कि आपको सारे बड़े सम्स तो एकदम भी नहीं करने चाहिए. आपको अपने कंसेप्ट तो वही चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में कंसेप्ट ज्यादा टेस्ट होते हैं. आपको बड़ा सम करने का 2-3 सम करके देख लेना चाहिए, ओके, बिकॉज यू नीड टू नो कि बड़े सम्स होते कैसे, ताकि जो केस बेस्ड एमसीक्यूज आ जाए उसमें आप डील कर पाओ उस चीजों से. तो मेरे हिसाब से आपका अप्रोच इज टू लर्न द कंसेप्ट फंड्स. कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आपने उसने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, आप उसका खुद का एक समरी नोट्स बना लो, उसके कुछ बड़े सम्स प्रैक्टिस करो जो बेसिक सब, ज्यादा नहीं करना है. अब हमें समझ में आ गया, ओके ये बड़े सम से कंसेप्ट क्लियर है, टुवर्ड्स एमसीक्यू जाओ, उसके कुछ 15-20 एमसीक्यू कर लो, एंड आई बिलीव दैट शुड बी गुड इनफ. फॉर एग्जांपल, अगर क्योंकि मैं एक अकाउंट्स टीचर हूं, तो मैं अभी एडमिशन पढ़ा रहा हूं अपने बैच को, तो मैंने उनको बोला कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर बोल के टॉपिक है हमारे अकाउंट्स में, तो मैंने उनको बोला आप पहले इसका पूरा कंसेप्ट सीख लो कि हम पीएसआर कैलकुलेट कैसे करें. फिर मैं डीके गोयल बुक फॉलो करता हूं, मैंने डीके गोयल के सारे इलस्ट्रेशन करवाए क्योंकि वो एनीवे छोटे होते हैं. उसके बाद मैंने एमसीक्यू क्लास में प्रैक्टिस करा. एज अ स्टूडेंट अब आपको क्या करना चाहिए, जो सम्स हमने क्लास में किया वो आपको वापस करना चाहिए, जो भी आपके टीचर करवा रहे हो आपको वापस करना चाहिए, और एक बार एमसीक्यू वापस से खुद से भी करके देखना चाहिए, ताकि यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट. तो आपको कंटिन्यूअसली खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आफ्टर अटेंडिंग क्लासेस. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मेरा मानना है कि आप चैप्टर्स को इंटेंसिवली एकदम एग्जॉस्टिवली बार बार मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करो, सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट्स. आफ्टर दैट मेक समरी नोट्स. मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ एमसीक्यू में, मैं खुद सीएफए दिया हूँ जहां पे सिलेबस बहुत बड़ा होता है, वी हैव 10 सब्जेक्ट्स इन लेवल 1. तो वहां पे मैंने क्या किया था, मैंने अपने 4 क्लासमेट्स के कॉपी में पूरे 10 सब्जेक्ट्स को समराइज कर लिया था, और हमारा एग्जाम एक ही दिन में होता था. उस टाइम पे हाउ डू यू रिवाइज योर 10 सब्जेक्ट्स. सो इट वाज इंपॉर्टेंट कि आप वो समरी कॉपीज है आपके पास, अगर आपने कोई एमसीक्यू सॉल्व किया उसका पॉइंट बहुत बढ़िया लगा है, उस पॉइंट को भी उस कॉपी में लिख लिया जाए उस टॉपिक के साथ. ये प्रिपरेशन होता है मेरे हिसाब से. तो एमसीक्यू एग्जाम में आपको कंसेप्ट्स पढ़ के उसका एक समरी टाइप बना लेना चाहिए अपने कॉपी के अंदर हैंड रिटन में, ताकि आप रिवीजन में इजी रहो. बार बार बुक्स पढ़ के कोई होना नहीं है कुछ भी, वो कॉपी से पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट आया, कॉपी में ऐड कर दिया. तो ये कॉपी वाला पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कुछ लोगों को प्रेफरेंस होता है कि हम आईपैड में लिख के नोट्स बनाएंगे, आप वो कीजिए, पर आपको अपना हैंड रिटन नोट्स हर चैप्टर के लिए बनाना चाहिए, या टाइप करके नोट्स बनाना चाहिए. ऑल्दो आजकल क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स ये नहीं करेंगे, तो आपका हैंड रिटन समरी नोट्स हर एक चीज में होना चाहिए. अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अकाउंट्स के लिए जरूर बोलना चाहूंगा, कि जो आपका अकाउंट्स की थ्योरी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक नया पार्टनर आ रहा है तो एक माइनर है, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? अगर वो बन सकता है तो कब बन सकता है? क्या उसे लॉसेस में हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब लॉसेस उसको शेयर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, खाली प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा या नहीं करना? ये सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खाली बड़ा सम्स करने के लिए. तो आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा. अगर किसी ने एडमिशन पढ़ लिया, वो डीके गोयल के या टीएस गरेवाल के जो भी बुक आप कर रहे हो उसका आपने सारे सम्स कर लिए, दैट इज नॉट सफिशिएंट. आपको एक बार रिविजिट करना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी चाहिए कि कैसे सम किया जाए. बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या एप्लीकेबल है. ऑप्शंस देख के आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा. तो वो स्मार्टनेस, वो पॉइंट्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आता है, मैं हमेशा मानता हूँ. तो मैं आपको यहाँ पे यही बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, कंसेप्ट्स कभी चेंज नहीं होते, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव, तो कंसेप्ट चाहिए नहीं. डिस्क्रिप्टिव का थोड़ा प्रैक्टिस चाहिएगा व्हेन इट्स द 8 मार्कर सम का, 1-2 कर लो, आइडिया लग गया सम होता कैसे, तब वो एमसीक्यू बिकम्स इजी. और अब वो 8 मार्कर के 40-50 सम नहीं हो सकते, वो रिप्लेस होगा अब आपके एमसीक्यू के 200-300 क्वेश्चन. तो मेरा स्टैंस यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल ये है कि कन्वेंशनल मोड ऑफ टीचिंग, जो ट्रेडिशनल मैनर्स थे वो शिफ्ट हो रहे हैं. तो आपको अपने कंसेप्ट्स पे फोकस जाना पड़ेगा, क्यों ये चीजें हो रही है. अगर एक पार्टनरशिप का मैं बात करूं, एडमिशन में एक नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, तो क्यों गुडविल लेके आ रहा है, व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने हमेशा डे 1 से बोला है. शेयर्स में जब आप कर रहे हो तो एक कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का लायबिलिटी क्या है, कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या है. पार्टनरशिप का डेफिनेशन उसके एक्ट में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, बिकॉज इन एन एमसीक्यू पेपर व्हेन इट्स थ्योरेटिकल टेस्टिंग आल्सो, और थ्योरी क्वेश्चंस होंगे. इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज बीओपी
में पूरा केस स्टडीज बनने का पूरा स्कोप है। तो अगर आपने खाली चैप्टर पढ़ लिया बिना समझे, बिना कि क्यों हो रहा है, $1.70 से $1.74 जब जाएगा, उसका पूरा इम्प्लीकेशन अगर आपको नहीं पता है, यू विल बी स्टक इन एमसीक्यू। बिकॉज अब आंसर नहीं लिखना है तो आप 10 आंसर लर्न करके नहीं जा सकते हो एग्जाम के। सो आपका माइंडसेट कंसेप्ट की तरफ होना चाहिए। उसके बाद समझने का टाइम दो, समझने में हड़बड़ी मत करो। समझने के बाद थोड़ा सम्स देखो कैसे करते हैं बुक्स के अंदर, छोटे सम्स तो एकदम करके देखना है, फिर एमसीक्यू करके उसका एप्लीकेशन देखना है। जब बड़ा कोई टॉपिक हो उसका 1 या 2 सम करके उसका नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि वो बड़े सम से ही आप छोटे सम्स की तरफ जल्दी जाओ। और छोटे सम्स करना क्यों जरूरी है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स समझ। तो एक थिन लाइन बनाना पड़ेगा आपको कि कितना आपको बड़े सम्स करने, कितने आपको छोटे सम्स करने। ये जो थिन लाइन ऑफ प्रैक्टिस जब बन जाएगा ना, यू विल बी ऑन पॉइंट। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए अब फीचर्स है, प्लानिंग के आपको लर्न नहीं करना है। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो हम लोगों ने 40 का टेस्ट सीरीज लिया। जिन्होंने भी 35 से कम लिया, हमने उनको पुश किया पर्सनली। 55 स्टूडेंट्स को कुशल सर ने पर्सनली कॉल किया ऑन द रिजल्ट डे, ऑन अ गो। 55 स्टूडेंट्स को कॉल किया गया हमारे एंड से। हमारा अभी इंडियन इको का टेस्ट सीरीज आएगा, अकाउंट्स के टेस्ट सीरीज आएंगे। यू नीड टू डू टेस्ट सीरीज सो दैट यू नो वेयर डू यू स्टैंड। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने 40 से 38, 39 लाया है पहले टेस्ट में, ग्रेट कॉन्फिडेंस बिल्डर। हमारा पूरा टेस्ट शेड्यूल है विद चैप्टर वाइज। खाली क्वेश्चंस देख के, कुछ वीडियो देखने से नहीं होने वाला, आपको खुद को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू बी इन दैट स्टैंस एंड जोन कि आप कर रहे हो। अब एक क्वेश्चन जो मेरे को बहुत जल्दी पूछा जा रहा है कि हमें कब तक सिलेबस करना चाहिए। आई हैव टोल्ड यू कि September 30th is what an optimum time, then you get around 45 days for your revision and MCQ practice, which is good enough. बहुत होते हैं 45 days रिविजन और MCQ प्रैक्टिस के लिए, ये मेरा मानना है, इन अ गुड प्लान। मैं इंग्लिश के लिए ओपिनियन नहीं दे सकता बिकॉज आई एम नॉट एन इंग्लिश फैकल्टी। तो मेरा थोड़ा सा डिस्कशन मोर टुवर्ड्स अकाउंट्स एंड इको एंड बीएसटी की तरफ था, क्योंकि मैं प्राइमरली उस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा डील करता हूँ। तो मैं यही मानूंगा कि आपको चैप्टर्स कंटिन्यूस रीडिंग करना चाहिए। मैं अगर एज अ स्टूडेंट होता तो मैं रोज रात को हाफ एन आवर बीएसटी और हाफ एन आवर इंडियन इको रोज पढ़ता, क्योंकि वो थियोरिटिकल है थोड़े। और जितना आप पढ़ोगे आज से, जस्ट काउंट, इफ यू स्टडी 50 days रेगुलरली एवरी डे, आप रोज रीड करोगे ना, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा उस चीज से। तो लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, मैं आपको खाली ये बोल सकता हूँ कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना है हमें, हिंदी में आप समझ लो, अपना कंफर्ट लैंग्वेज में आप समझ लो, एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ जाओ ज्यादा, डिस्क्रिप्टिव में 1-2 टाइप कर लो ताकि आपको समझ आए कैसे हो जाना है। क्या हम नॉलेज से डिप्राइव होंगे? आप कभी नॉलेज से डिप्राइव नहीं होंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपको सारा समझना है। और कंसेप्ट समझते समय आप ये स्ट्रेस मत लो कितना जल्दी समझना, टाइम लेके समझो, इट स्टेज इनसाइड योर ब्रेन। ऐसे नहीं कि 15 मिनट में एक वीडियो देख लिया, वो ऐसे होगा बस, फिर क्वेश्चन करने चलेगा। तो याद रखना, आप आगे जाके प्रॉब्लम्स में आ जाओगे फिर लाइफ। तो आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, यहाँ से आपका करियर इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो नॉलेज, कंसेप्ट्स ओरिएंटेड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम 2 मिनट मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, ताकि 80 मिनट्स में हो जाए, और 10 मिनट कहीं ना कहीं हाथ में चाहिए हमें 90 मिनट्स के पेपर में। एंड ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस अक्टूबर और नवंबर में होना चाहिए कि आप ओएमआर शीट से भी यूज्ड टू हो गए हो, क्योंकि आप पहली बार ओएमआर शीट पे हैंडल करोगे। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ग्रेट मूव बाय सीबीएसई, वेल प्लान्ड एक्शन। होपफुली सीबीएसई अपने सैंपल क्वेश्चंस जल्दी निकाले, ताकि वी गेट ग्रेट आइडियाज कि किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, किस टॉपिक पे कितना ज्यादा इनका फोकस रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, सो दैट स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड। तो कुछ लोगों को वो टाइम चाहिएगा अक्टूबर के 45 डेज, ताकि वो अपने नॉलेज को और अपग्रेड कर सके उस क्वेश्चंस को देख के। अब सरप्राइजिंगली कुछ लोग बोल रहे हैं कि September 5 से हमारा एग्जाम है, September 1 से हमारा एग्जाम। अभी तक सीबीएसई के बेसिक क्वेश्चंस फ्रेमवर्क नहीं आए हैं, तो it's way too early. I just believe this, but that's okay. That's the school process, and I don't want to go towards that direction. And I still believe that you batch are in a better position than the last year batch, जिनका boards ही नहीं हुआ है। उनके results में कुछ लोग have been very कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा unfair practices, unfair चीजें हुई है। एंड ना ही मैं स्कूल को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं टीचर्स को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं था। पर अब आपके हाथ में अपना करियर है। योर फोकस शुड बी टर्म 1 40 on 40, एंड उसके लिए आपका प्रिपरेशन, आपका प्लानिंग, आपकी गाइड वाले जो मेंटर्स है वो राइट है या नहीं है, क्या वो हमें प्रिसाइजली वो डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। एंड आपको पता होना चाहिए कि यार September 30 तक लेट्स टारगेट कि यार हमारा 90-95% हर सब्जेक्ट का हो जाए, ताकि हम रिविजन 45 डेज सॉर्टेड कर सकें। 45 डेज रिविजन इज वे टू मच, आराम से हो सकता है बिना कोई स्ट्रेस के। आपका फोकस पूरा टर्म 1 40 on 40 की तरफ एकदम होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? यार मैं बोलूंगा 35 प्लस
एकदम आना चाहिए टर्म 1 में टू अ गुड क्वालिटी स्टूडेंट, और 35 प्लस इज लाइक 90% स्कोर, एंड एमसीक्यू में 90% इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर। जितना इजी यहाँ लग रहा है उतना इजी नहीं है। आई गॉट इन माई CFA लेवल 1 ऑल सब्जेक्ट्स अबाउट 90 परसेंटाइल, एंड मैंने बहुत एमसीक्यूज किए थे। जब मैंने सीए, हमारे टाइम में सीपीटी था, वो भी एमसीक्यू होता था, मैंने वहां पे भी अराउंड 4000 5000 एमसीक्यूज किए थे ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। सो एमसीक्यूज गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, इट जस्ट मेक्स यू वेल प्रिपेयर्ड कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आओगे आप डरोगे नहीं। तो वो नया एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, आपका एक्सपोजर पहले से होना चाहिए। एंड लास्ट में, आई एम नॉट अ गाय व्हिच लाइक्स पब्लिसिटी ऑफ माय ओन क्लासेस, पर मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, प्लीज गेट इन टच विद अस, एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, एंड दैट टेस्ट सीरीज इज लाइक 1000 रुपीज। I'm not gonna gain 100 स्टूडेंट्स पे, अगर मेरे को 1000 रुपीज मिलता है, that's 1 लाख रुपीज। बाय गॉड्स ग्रेस मैं 1 लाख रुपीज के लिए इतना मार्केटिंग यहाँ करने आया नहीं। So for me it's very clear, enrolling for a test series is gonna give you the confidence that you need. So मेरा whole point यहाँ पे simple ये होगा, enroll for yourself for test series, get a good mentor, make your summarized notes, तो crux discussion, सारे concepts को डिटेल में पढ़ा जाए, make summary notes, then solve good amount of MCQs, test series appear करो, OMR sheet पे लेके बैठो। और हमारे यहाँ पे 200-300 बच्चे जब एक साथ टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस, हमारे बीएसटी में 150 स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू गोना हैव, द 150 स्टूडेंट्स एक साथ उस लेवल पे देने वाले। जब कोविड सिनेरियोस बेटर होंगे, हम अपने इंस्टीट्यूट्स पे वो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करेंगे प्रॉपर इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट, 90 मिनट्स प्रॉपर, एंड वी आर नोन फॉर दैट। एंड हमने लास्ट 3 years, लास्ट टाइम बोर्ड्स में ही हुआ था, आई एम नॉट गोना काउंट दैट एज अ रिजल्ट, पर उसके पहले जब भी बोर्ड्स हुआ, वी हैव बीन टॉप परफॉर्मर्स in northeast market with our results, and we have been delivering results. We had scores जहां पे लोगों ने 90% आराम से टच किए। 90% populations have scored more than 90%, because आपको खाली अपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करना होता, आपको सिलेबस के बाद रिवीजन चाहिए मल्टीपल टाइम्स। तो we take time to deliver concepts, and that is what I have learned from my best faculties, कि जो गुड क्वालिटी होते हैं वो जल्दी खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पीएसआर पढ़ा रहा हूँ, मेरे 6 क्लासेस से पीएसआर कैलकुलेशन चल रहा है, हमने 55 सम्स अभी तक सॉल्व किया है, इंक्लूडिंग 20 एमसीक्यूज, और अभी भी करना है और प्रैक्टिस, क्योंकि दिस इज व्हाट इज गोना गेट यू मार्क्स इन द एग्जाम, द प्रिसिशन। आप एक क्लास में पीएसआर कर लोगे, नहीं होगा एग्जाम में जाके वो सॉल्व शायद। और इस बार बोर्ड्स यही है, नियर बाई है, तो हमारा फोकस पूरा उस पर होना चाहिए। I think that's what my message to all the young men, young fellows, young students out there trying hard to build great careers. I hope you're keeping safe during this COVID times, and let's hope that everyone scores really, really well. And whatever possible way जिसपे हम help कर सकते हैं, हम definitely आपको करेंगे। आज I'll be uploading another video of partnership MCQs, जिसमें मैंने 20 MCQs जो discuss किए क्लास में, मैं आपको वो भी provide करूंगा। So stay connected with us. That's it from my side. All the best, guys, and I hope that आपके साथ unfair कुछ नहीं और आपके boards proper schedule पे हो, because that's what the young students who are energetic, who are dedicated wants that, and I'm sure about. All the best.